Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class? Today we are going to study chapter 13, session number 3 of the topic Matilda from Safain Education Services. So let's start today's session. Yes, class 8. So this is our chapter. But before starting, let's see what has happened in the previous two sessions of this chapter. That how Miss Trunchbull had treated the students while she was conducting the class test with Miss Honey. First of all, she had asked some spellings and she thought that students would be unable to answer them, but fortunately students were quite perfect to answer the spellings properly. Then one of the boy Nigel, and he said that Miss Honey has taught us very nicely, and he asked her to let him tell the method that how she has taught it. So he told Miss Trunchbull that she had taught us in a form of a song that how to spell a long word. So Miss Trunchbull was not quite satisfied by that method, and she said that to Miss Honey that you have to leave this method, and the students from this grade they should not be taught so long spellings and whatsoever. As per her nature, she was not satisfied, and there was always a comment on the efforts of the teachers and students. Then afterwards, asking the spelling from two boys, they were Nigel and Rupert, that she has given punishment to the but the second boy. She has hold her up with the hair, and he was trembling with his pain. And after that, the boy Eric, when he has spelled the word wrong, she picked him up with 2 ears, and Miss Honey was also quite surprised, and all the students in Matilda, they were amazed because they have never seen such kind of activity in the class. So now in this chapter, let's see what's happening. See the first para. Let him go, Miss Trunchbull, please, begged Miss Honey. You could damage him. You really could. You could wrench them right off. तो वो क्योंकि कान से पकड़ा हुआ था उन्होंने बच्चे को, एरिक को, तो मिस हनी यही कहती हैं कि इसको छोड़ दें आप, और ये बच्चा तकलीफ़ में है, ऐसे नहीं उसको कोई नुकसान पहुंच जाए, इसके कान ही ना निकल आए बाहर. तो मिस ट्रंचबुल कहती हैं, ears never come off, the Trunchbull shouted. They stretch most marvelously, like these are doing now, but I can assure you they never come off. तो मिस ट्रंचबुल जो है उनको आंसर करती हैं कि जो ईयर्स होते हैं दे नेवर कम ऑफ, ऐसे नहीं होता कि कान जो है उखड़ जाएं या निकल जाएं. ठीक है जी, दे आर स्ट्रेच मोस्ट मार्वलेसली, जो है ये स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, स्किन वगैरह कुछ इस तरह से उसने कमेंट किया मिस ट्रंचबुल ने. तो कहती हैं कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये इसको कोई डैमेज या नुकसान बच्चे को नहीं पहुँचेगा, ना इसके कान वगैरह निकलेंगे या उखड़ेंगे. Eric was squealing louder than ever and paddling the air with his legs. तो एरिक जाहिर सी बात है एक छोटे बच्चे को अपने कानों से पकड़ के उठाया हुआ है, तो वो बेचारा ज़ोर से चीख रहा चिल्ला रहा था और हवा में अपने पाँव चला रहा था जैसे कोई पैडल करते हैं, ज़ाहिर है तकलीफ से. Matilda had never before seen a boy, or anyone else for that matter, held aloft by his ears alone. Like Miss Honey, she felt sure both ears were going to come off at any moment with all the weight that was on them. तो क्योंकि मटिल्डा भी इसको देख के सरप्राइज़ हो रही थी, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि किसी लड़के को या किसी को भी दोनों कानों से पकड़ के सिर्फ उनको उठा लिया जाए हवा में. तो मिस हनी की तरह ये भी यही फील कर रही थी कि इसके कान जो है यकीनन निकल आएंगे, टूट जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, व्हाटएवर, नुकसान पहुंच सकता है बच्चे को, ज़ाहिर है कानों पे पूरी बॉडी का वेट है, तो इस वजह से वो भी परेशान हो रही थी. सी द नेक्स्ट पेज. द ट्रंचबुल वॉज शाउटिंग. द वर्ड वॉट इज स्पेल्ड WHAT. नाउ स्पेल इट यू लिटिल वॉट. और इसी दौरान मीनवाइल मिस ट्रंचबुल जो है वो अपना शोर मचा रही थी कि जो वर्ड वॉट है उसकी स्पेल करो, और उसको बच्चे को उन्होंने स्पेल करके भी बताया कि इसकी स्पेलिंग WHAT है, क्योंकि वो ही वॉज कंटिन्यूसली स्पेलिंग दैट वर्ड रॉन्ग.
एरिक जो है उसको बार बार रॉन्ग ही कह रहा था, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा कि पहले उसने WOT किया, फिर उसने WHOT बताया, फिर WHOTT, 2 दफ़ा डबल टी बताया। इस वजह से उसको इस तरह से पनिशमेंट मिल रही थी, बट इट वॉज टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया था कि कान से पकड़ के उठा लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? Eric didn't hesitate. He had learned from watching Rupert a few minutes before that the quicker you answered, the quicker you were released. तो क्योंकि एरिक से पहले जो रूपर्ट बच्चा था, उसको देखकर इसने एक्सपीरियंस कर लिया था कि जितनी जल्दी आप मिस ट्रंचबुल को आंसर करेंगे, उतनी जल्दी आपको पनिशमेंट से रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके साथ भी यही हुआ, उसको बालों से पकड़ के जो है उठा लिया गया था हवा में, तो जैसे ही उसने आंसर सही दिया उसको छोड़ दिया गया। तो ये एक्सपीरियंस जो है सब बच्चे कर रहे थे। तो एरिक की टर्न थी, तो एरिक ने भी यही किया, फ़ौरन से उनकी स्पेलिंग को रिपीट किया भाई, WHAT स्पेल्स वॉट। उसने बताया कि WHAT जो है ये वॉट की स्पेलिंग है, और वो दर्द में था। Still holding him by the ears, the Trunchbull lowered him back into his chair behind his desk. Then she marched back to the front of the class, dusting off her hands one against another, like someone who has been handling something rather grimy. तो उसके बाद जो है मिस ट्रंचबुल ने जो है उसको नीचे कर दिया, हवा में से कान छोड़ दिए उसके, और उसको जो है उसकी चेयर के पास खड़ा कर दिया, और फिर उसके पीछे से जो है वो वापस अपने क्लास के फ्रंट पर, अपने जहाँ उनका डेस्क रखा हुआ था वहाँ पर आ गई, और अपने दोनों हाथों को झटकने लगी एक दूसरे से, जैसे कोई गंदी चीज़ हाथ पे लग जाती है या कुछ। आफ्टर दैट, "That's the way to make them learn, Miss Honey," she said. "You take it from me, it's no good just telling them. You have got to hammer it into them. There's nothing like a little twisting or twiddling to encourage them to remember things. It concentrates their minds wonderfully." तो when she stood up in front of the class near her table, वो क्लास के सामने आ गई, अपने टेबल के पास खड़ी हुई, so she was टॉकिंग टू मिस हनी। मिस हनी से फिर वो मुखातिब होकर कहने लगी कि इस तरह से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी सज़ाएं दे के, पनिश करके। तो ये आप मुझसे सीख लें। तो यू हैव गॉट टू हैमर, कुछ थोड़ा बहुत जो है आपको इनकी पिटाई करनी पड़ती है। तो और इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई नहीं होती, या उनकी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता कि आप उनको जो है इतनी प्यार से पढ़ाएं। तो ये ज़रूरी है कि उनके साथ थोड़ा सा पिटाई, सख्ती की जाए, उनको मरोड़ा जाए इस तरह से। तो इससे उनका बिलीव ये था कि ये करती थी वो बिलीव कि इससे जो है उनका कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा माइंड्स का बढ़ता है या डेवलप होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। दैट वाज हर थॉट, मिस ट्रंचबुल। "You could do them permanent damage, Miss Trunchbull," मिस हनी cried out. तो लेकिन अभी भी मिस हनी जो है शी डिडंट एग्री, वो अभी भी उनको अपोज कर रही थी, और यही कहा कि इससे तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। "Oh, I'm quite sure I have," the Trunchbull answered, grinning. "Eric's ear will have stretched quite considerably in the last couple of minutes. They'll be much longer now than they were before. There's nothing wrong with that, Miss Honey. It will give him an interesting pixie look for the rest of his life." तो जो मिस हनी ने अपोज किया, उसका जवाब मिस ट्रंचबुल ने ये दिया कि वो कह रही थी कि आप नुकसान पहुंचाएंगी, तो कहा हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है कि शायद मैंने एरिक को कुछ नुकसान ही पहुंचा दिया। एक उन्होंने जो है तनकीद की ज़बान में उनसे बात की, ठीक है जी, तो एक तंजिया जिसको कहना चाहिए। और फिर उसको कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एरिक के कान आपने देख लिए हैं, अभी कुछ मिनटों में जो है पनिशमेंट में था ये, तो थोड़े से कुछ वाज़े तौर पे स्ट्रेच ज़रूर हो गए होंगे, और पहले से इसके कान बहुत छोटे थे, अब थोड़े से लंबे हो गए होंगे, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और बल्कि उनका मानना ये था या कहना ये था मिस ट्रंचबुल का कि इसके कान थोड़े जो लंबे या बड़े हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा अब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बाकी की पूरी ज़िंदगी जो है इसका लुक जो है चेहरे का थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाएगा। इंटरेस्टिंग।
तो बट मिस ट्रंचबुल, मिस हनी कहती हैं कि ये तो, मगर फिर मिस ट्रंचबुल जो है मिस हनी को खामोश करा देती हैं। क्या कहती हैं? ओ डू शट अप मिस हनी, यू आर एज वेट एज एनी ऑफ देम, इफ यू कांट होप in here, if you can't cope in here, then you can go and find a job in some cotton wool private school for the rich birds. तो वो कहती हैं कि मिस हनी, आप जो है बिल्कुल खामोश हो जाएं, और इस तरह से अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर सकती, या मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लें, या उनका जो भी वे ऑफ टीचिंग था, या स्कूल के जो भी उनके रूल्स थे, तो वो कहने लगी कि आप यहाँ से जा सकती हैं, एंड यू कैन फाइंड अ जॉब इन सम कॉटन वूल प्राइवेट स्कूल फॉर रिच बर्ड्स। तो कह रही हैं तो फिर आप किसी और स्कूल में चले जाएं जहाँ अमीरों के बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पर शायद इस तरह की हरकतें ना होती हों। तो इस वजह से शी वॉज टेलिंग मिस हनी टू लीव द स्कूल एंड गो टू द अदर, बिकॉज शी वॉज कंटिन्यूसली अपोजिंग द वे ऑफ हर punishment in the class. Is class 8. So on this page, after the Trunchbull had said Miss Honey to leave the school if you can't follow the instructions by her, what she says, now let's see the first para. Well, you have been teaching, when you have been teaching for as long as I have, you will realize that it is no good at all being kind to the children. तो कहती हैं कि वही मुझे जितना अरसा यहाँ पढ़ाते हुए या रहते हुए हो गया इस स्कूल में, अगर इतना अरसा आपको हो जाएगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, समझ आएगा कि बच्चों से ज़्यादा हमदर्दी करने का, नॉट नीड टू बी काइंड टू द चिल्ड्रन, बच्चों से इतनी हमदर्दी करने का, उनके साथ काइंड रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. रीड निकल्स निकल बाय मिस हनी बाय मिस्टर डिकेंस. Read about Mr. Wackford Squares, the admirable headmaster of Dotheby Hall. फिर वो कहती हैं कि उनको एक एडवाइस देती हैं, मशवरा देती हैं मिस हनी को, मिस ट्रंचबुल के आप जो है निकलस निकल भाई की जो बुक्स हैं उनको पढ़ें, ठीक है जी, जो स्टोरी है वो जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है, या फिर मिस्टर वैकफोर्ड स्क्वेयर्स के बारे में पढ़ें, जो कि डॉथबाय स्कूल, डॉथबाय बॉयज़ हॉल जो है उसके हेडमास्टर होते हैं. वो किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते थे, किस तरह से वो हैंडल करते थे. ही न्यू हाउ टू हैंडल द लिटिल ब्रूट्स, he knew how to use the bridge, didn't he? He kept their backsides so warm you could have fried eggs and bacons on them. A fine book that. तो मिस्टर ट्रंचबुल यही बता दिए हैं कि उसमें बताया है, उन्होंने लिखा है उस बुक में कि किस तरह से वो जो है बच्चों को ट्रीट करते थे, और बैक साइड्स उनकी वार्म रखते थे, यानी उनकी पिटाई करते थे ज़्यादा. तो राइटर ने एक ऐसे ही एग्जाम्पल दी है कि उनकी इतनी पिटाई होती थी कि उनके बैग को वार्म किया जाता था कि एग्स और बेकन्स आप उन पर फ्राई कर लें. तो कहती हैं कि अच्छी किताब है क्योंकि वो उनके मतलब की होगी. बट आई डोंट सपोज दिस बंच ऑफ मॉडर्न्स वी हैव गॉट हियर will ever read it because by the look of them they are never going to learn to read anything. तो because she was already degrading the students, तो बच्चों को हमेशा डिग्रेड ही करती थी. शी नेवर अप्रिशिएटेड. तो यही कहती कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो, उनके पास तो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है इस तरह से, तो कह ही रही थी. तो कहती हैं हमारे पास जैसे बच्चे हैं वो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई इतनी अच्छी किताब को पढ़ेगा. ना व्हाट इज़ द ट्विस्ट इन द स्टोरी. अब कहानी में यहाँ तक क्या चेंज आया है कि वो तो कह रही थी कोई नहीं पढ़ेगा, बच्चे ऐसे वैसे. आई हैव रेड इट, मटिल्डा सेड क्वाइटली. मटिल्डा ने खामोशी से या हल्की आवाज़ में ये बात कही कि मैंने तो ये पढ़ी हुई है. द ट्रंचबुल flicked her head around and looked carefully at the small girl with dark hair and deep brown eyes sitting in the second row. तो जब मिस ट्रंचबुल ने ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपना सर उठाया और मटिल्डा की तरफ बड़ी गौर से देखने लगी. तो मटिल्डा का अपीयरेंस बताया, हुआ सिटिंग इन द सेकेंड रो. मटिल्डा क्योंकि सेकेंड रो में बैठी हुई थी. स्मॉल गर्ल क्योंकि आपको पता है कि उसका कद बहुत छोटा था, छोटी सी बच्ची थी, और उसके हेयर भी डार्क बताए गए हैं विद द डार्क ब्राउन आइज़. ठीक है जी, तो ये उसका अपीयरेंस बता गया. व्हाट डिड यू से, शी आस्क्ड शार्पली. थोड़ी तेज़ आवाज़ में ट्रंचबुल ने मटिल्डा से पूछा कि तुमने क्या कहा है. आई सेड आई हैव रेड इट मिस ट्रंचबुल. मटिल्डा आंसर करती उनको, मैंने कहा कि मैं ये पढ़ चुकी हूँ मिस ट्रंचबुल. रीड व्हाट.
क्या तुमने पढ़ लिया? निकोलस पे बात। मिस ट्रेंचबुल बता दिया निकोलस के जो स्टोरी है वो मैंने पढ़ी हुई है। यू आर लाइंग टू मी मैडम, द ट्रेंचबुल शाउटेड ग्लेयरिंग एट मटिल्डा। तो ट्रेंचबुल ने जो है उन पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैडम आप तो मुझे झूठ बोल रही हैं इस तरह का। आई डाउट देयर इज अ सिंगल चाइल्ड इन द एंटायर स्कूल हु हैज़ रेड दैट बुक एंड हियर यू आर। तो वो कहती है अच्छा, मेरा ख्याल है कि पूरे स्कूल में क्या तुम ही एक बच्ची हो जिसने ये बुक पढ़ी हुई है, तो मुझे तो शक हो रहा है इस तरह से। वो उसको कहने लगी एन अनहैच्ड shrimp sitting in the lowest form there is trying to tell me a whopping red lie। तो कहती है तुम तो अभी इतनी छोटी हो, जैसे उर्दू में मिसाल दी जाती है कि अनहैच्ड जो कह रहे हैं कि अंडे से निकली नहीं हो, और तुम मुझे इतना बड़ा झूठ बोल रही हो इस तरह से। तो वाई डू यू डू इट, यू मस्ट टेक मी फॉर अ फूल, डू यू टेक मी फॉर अ फूल चाइल्ड। तो कहती हैं मिस ट्रंचबुल मटिल्डा से कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो या कर रही हो, क्या ज़रूरत है, तुम क्या, मुझे लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो। तो वो उससे फिर सवाल करती हैं कि तुम वाकई मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो। तो वेल, मटिल्डा सेड, देन शी हेजिटेटेड, शी वुड लाइक टू हैव सेड यस आई जॉली वेल डू, बट दैट वुड हैव बीन अ सुसाइड। फिर जब इस बात का मटिल्डा उनको जवाब तो देना चाह रही थी, वो कहती है कि वेल, लेकिन कहना चाह रही थी, अचानक हेजिटेट करके वो खामोश हो जाती है, उसको हिचकिचाहट महसूस होती है तो वो खामोश हो जाती है। वो दिल में यही सोचती है कि मैं तो वाकई ये कहना चाह रही हूँ कि आई जॉली वेल डू, मैं तो यही समझ रही हूँ कि आप कुछ बेवकूफ़ हैं या कुछ है। देन शी हैज़ चेंज्ड हर माइंड, स्पाइट ऑफ स्पीकिंग इट्स बेटर टू बी क्वाइट। तो फिर अचानक उसने अपना जो है सोच को बदल लिया, देन तब्दील कर लिया कि ऐसी कोई बात बोलने से अच्छा कि खामोश रहो, क्योंकि दे कुड बी अ वेरी सिवियर इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। तो इस तरह की अगर मैं बात कहती हूँ तो इसका असर बहुत बुरा हो सकता है, जैसे कि मैंने खुदकुशी की हो, अपने ऊपर खुद ही मुसीबत को बुला लिया हो। वेल, शी सेड अगेन, स्टिल हेजिटेटिंग, स्टिल रिफ्यूजिंग टू से नो। फिर भी वो कुछ कहना तो चाह रही थी, लेकिन वो मजबूर थी कि वो नो कह सके कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी रेड इट, क्योंकि वो तो ये किताब पढ़ चुकी थी, इसलिए उससे नो भी नहीं कहा जा रहा था। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाहट उसको महसूस हो रही थी कि क्या बोलूँ मैं। द ट्रेंचबुल सेंस्ड व्हाट द चाइल्ड वाज थिंकिंग एंड शी डिडंट लाइक इट। तो ट्रेंचबुल को ये महसूस हो गया था कि बच्ची जो है कुछ सोच रही है बोलने का, तो एंड शी डिडंट लाइक इट, उसको ये पसंद नहीं आया कि ये अब मेरे सामने कुछ बोले। स्टैंड अप व्हेन यू स्पीक टू मी, शी स्नैप्ड, व्हाट्स योर नेम। तो वो कहती है जब भी तुम मुझसे बात करो गुस्से से कहती हैं कि खड़े हो जाओ, और वो उसका नाम पूछती हैं। मटिल्डा स्टूड अप एंड सेड, माय नेम इज़ मटिल्डा वॉर्मवुड मिस ट्रंचबुल। फिर वो अपना नाम बता दिए कि मेरा नाम जो है मटिल्डा वॉर्मवुड है। वॉर्मवुड, इज इट, द ट्रंचबुल सेड, इन दैट केस यू मस्ट बी द डॉटर ऑफ दैट मैन हु ओन्स वॉर्मवुड मोटर्स। तो वो कहती है वॉर्मवुड इज इट, क्या वॉर्मवुड कहा है तुमने, है ना, तो यकीनन तुम फिर उसी शख्स की बेटी होगी जो कि वॉर्मवुड मोटर्स के मालिक हैं। तो अब वो पहचान चुकी थी, इनको कुछ सिग्नल्स मिल गए थे मिस ट्रंचबुल को कि ये कौन है और किसकी बेटी है, तो वो फ़ौरन पहचान गई कि वॉर्मवुड, तो इट मीन्स के तुम वॉर्मवुड मोटर्स के जो मालिक है उन्हीं की बेटी हो। Then on the next page, Matilda replies, yes, Miss Trunchbull, ji haan. He's a crook, the Trunchbull shouted. A week ago he sold me a second-hand car that he said was almost new. I thought he was a splendid fellow then. But this morning while I was driving the car through the village, the entire engine fell out on the road. The whole thing was filled with sawdust. The man's thief and a robber. I'll have his skin for sausages, you see, if I don't. So she says, as per her habit, she starts speaking the abusive language for Mr. Wormwood. ठीक है, वो उनको बुरा बुरा कहने लगी। उन्होंने उसको बताया कि फ्यू वीक्स अगो जो है उन्होंने एक अच्छी गाड़ी उनसे ख़रीदी, जिसको उसने कहा कि बहुत अच्छी है, तो मैं सोची कि है बड़ा अच्छा आदमी है जो मुझे इतनी अच्छी गाड़ी बेच रहा है। सो टुडे व्हाइल शी वाज ड्राइविंग थ्रू द विलेज, तो द होल इंजन फेल ऑफ, तो सारा उसका इंजन ही गिर गया। कहती है उसमें सॉडस्ट मिक्स था, वो ही इज़ अ थीव, इज़ अ रॉबर, कहती है चोर है, डाकू है, इस तरह से मैं उसकी खाल खींच लूँगी, देखना है, इस तरह के। शी वॉज टॉकिंग रैशली टू द चाइल्ड मटिल्डा।
He is clever at his business, Matilda said. Matilda ने जवाब दिया कि he is quite clever. As you know, it is previously discussed that how he was teaching Michael को किस तरह से वो पढ़ा सिखा रहे थे business की techniques. उसने कहा कि वो काफ़ी, Matilda ने कहा कि मेरे father जो हैं काफ़ी clever हैं business के अंदर. तो ये सुनकर मिस ट्रंचबुल got more angry. वो ज़्यादा गुस्से में आ गई. Clever my foot. Miss Honey tells me that you are meant to be clever too. Well, madam, I don't like clever people. They are all crooked. You are most certainly crooked. Before I fell out with your father, he told me some very nasty stories about the way you behaved at home. Uh, but you'd better not try anything in this school, young lady. I shall be keeping a very careful eye on you from now on. Sit down and keep quiet. फिर वो कहती है कि मिस हनी ने भी मुझे बताया था कि यू आर क्वाइट क्लेवर. मैं तो कहने लगी कि आई डोंट लाइक क्लेवर पीपल. मुझे जो है ज़्यादा चालाक लोग पसंद नहीं है क्योंकि जो ज़्यादा चालाक होते हैं वो थोड़े से क्रूड होते हैं, थोड़े से पागल होते हैं, इस तरह से कहने लगी. मैं पहले भी तुम्हारे फादर से मिल चुकी हूँ. उसने बताया है, ही है टोल्ड मी द नेस्टी स्टोरीज के किस तरह से तुम जो है बैड बिहेवियर रखती हो घर में इस तरह से. तो बट इट्स बेटर नॉट टू ट्राई एनीथिंग लाइक दिस इन स्कूल. कहती हैं कुछ ऐसे स्कूल में ट्राई नहीं करना लेडी. सो शी सेड दैट शी वुड कीप एन स्ट्रिक्ट आई ऑन हर, कि मैं तुम पर कड़ी नज़र रखूँगी. सिट डाउन एंड बी क्वाइट. So students, that's all for today for this chapter, and this session it's complete here. So after this explanation you will get the slides of summary. You will write down, and there are some words given below the summary, and you have to make the sentences of them. So I hope you have enjoyed this chapter. See you in the next class with the new chapter. Till then, take care. Allah Hafiz. Yes, class 8. So this is your summary of the chapter, and it is also continued. A little portion of the summary is also on the next slide. It is continued there, and after the summary, in the end on the next slide you will get the words that you have to make the sentences of your own. You will write down these things all in your English literature homework copy, all the question and answers, reference to context, summary, all the home assignment in your text copy, and then submit for your checking. Thank you.